Good afternoon to all the dearest one which are waiting for my video from many days to start the organic part of class 12th. So, welcome all which are waiting. Today we will start with a very important chapter. As you know that your NCERT book is divided into two parts. So, the second part, which is for organic chemistry, the first chapter of that book is known as haloalkanes and haloarenes. So, today we will start with this chapter. Many days, many hours, minutes and seconds of my dedicated work will be there, and your dedicated part will be there to finish the chapter in that way that you always remember that this is the best part of organic chemistry, we have taken it together. So, with this quote we will start the class. As we have done in the classification, if you remember, when we have done the classification like the nomenclature and the functional group, we have done haloalkanes and haloarenes, all of you know this. So, in the beginning only I want to again tell you that what is haloalkane and haloarene. First you please all of you write down the heading haloalkane and haloarene in your copy, all of you fast, write haloalkane and haloarene, and then how we will start, we will be taking C2H5Cl. C2H5Cl is known as chloroethane. C2H5Cl is chloroethane, which is haloalkane, where the carbon is sp3 hybridized. Second part, we have haloarene also in this chapter. So, haloarene mean benzene ring, where the carbon is sp2 hybridized. So, you have sp3 hybridized and sp2 hybridized. These two are chloroethane and chlorobenzene. So, please write down these two examples only. Then I will take a little bit introduction of a few like headings which are very important, but first you write, I know that you know it, but you please write down C2H5Cl, sp3 hybridized, and benzene. On that you have to write Cl or any halogen, it will be haloarene. In haloalkane, the carbon of the like halo atom which is attached with the halo atom is sp3 hybridized, while in case of haloarene it is sp2 hybridized. Now, put your pen for a minute and listen to me carefully what I want to tell you. Why we want to study this chapter? सबसे बड़ी बात है ना भाई, हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? हर चीज़ का कोई रीज़न है ना पढ़ने का, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर जगह यूज़ होते हैं, स्पेशली अगर आप उनमें से कुछ मैं लेके बता रही हूँ आपको जो मेडिकल साइंस में यूज़ हो रहा है। तो जो हैं तो हज़ारों जो यूज़ हो रहे हैं, बट जो अपन के कोर्स में है जितना अपन को मालूम होना चाहिए, तो पहले सुन लें फिर लिखेंगे। जैसे कि एक कंपाउंड है, एक मेडिसिन है जिसका नाम है क्लोरमफेनिकोल। एक मेडिसिन है उसका नाम है क्लोरमफेनिकोल। वो मेडिसिन इज़ यूज फॉर लाइक इट इज़ इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। अब जैसे वन वर्ड आंसर जो आपको पता है कि CBSE का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लास्ट ईयर हुआ था वन वर्ड आंसर वाला, और इस साल तो ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा आएंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर इज़, अब एक नंबर का मतलब 1 मार्क है इतने से बात पे, तो क्या है वो? क्लोरमफेनिकोल। पहले पूरा सुन लो फिर लिख लेना। थायरोक्सिन, आप सब जानते हो कि अपनी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है और वो सारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अगर उसकी कुछ भी उसमें मतलब डिसऑर्डर हो जाए उसके लेवल में जो जितना होना चाहिए, तो हमें क्या हो जाता है? इट कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ इट कॉजेज ग्वाइटर। ग्वाइटर जहाँ यहाँ पर ऐसा गर्दन पर हो जाता है, बहुत मोटा मोटा ऐसा हो जाता है, दैट इज़ ग्वाइटर। ऐसे ही एक हमारे पास है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ये दवा यूज़ होती है मलेरिया के लिए, सबने सुना होगा क्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है बहुत अच्छी। उसके बाद एक चीज़ है हेलोथेन। हेलोथेन एक एनेस्थेटिक है। जब अपन सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में एनेस्थेटिक यूज़ होता है जिसका नाम है हेलोथेन। तो ये सब कुछ स्पेशल दवाएं हैं जिसमें हेलो कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये चैप्टर नॉट ओनली दिस मच क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन अपन ने कुछ पढ़ी हैं, इसलिए अपन ये चैप्टर पूरा डेप्थ में और डिटेल में पढ़ना है। सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग फास्ट। फर्स्ट यू राइट क्लोरमफेनिकोल, करेक्ट स्पेलिंग लिखना CHLORAM
PHENICOL, chloramphenicol. Chloramphenicol is effective for what? For treatment of typhoid fever. किसके लिए इफेक्टिव है ये? For treatment of typhoid fever. टाइफॉइड फीवर के लिए ये दवा बहुत इफेक्टिव है. उसके बाद फिनिश द लाइन, इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर. सेकेंड लाइन पे स्टार लगाएंगे और लिखेंगे थायरोक्सिन, THYROXINE, थायरोक्सिन. उसके वहाँ लिखेंगे अपन अ हार्मोन डिफिशियंसी ऑफ इट कॉजेज ग्वाइटर. अ हार्मोन डिफिशियंसी ऑफ इट कॉजेज ग्वाइटर, GOITER, डिफिशियंसी ऑफ इट कॉजेज ग्वाइटर. फिर हम थर्ड स्टार में लिखेंगे क्लोरोक्वीन, CHLOROQUINE, क्लोरोक्वीन. क्लोरोक्वीन के वहाँ लिखेंगे यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. क्लोरोक्वीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. लास्ट स्टार हम लगाएंगे हेलोथेन, HALOTHANE, हेलोथेन, used as anesthetic during surgery, used as anesthetic यानी बेहोश करने वाला, during surgery. So these are some examples of haloalkane which are very common and very much in use. Okay, so this is the introduction of haloalkane arene, but sometimes हम लोग पढ़ते हैं बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं हम हमेशा, मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, नेम रिएक्शन पढ़ लेंगे, बस छोटी सी बहुत आसान चीज़ छोड़ देते हैं जिसके अंदर हो सकता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन फंस जाता है. तो ये हो गया आपका. अब आप नेक्स्ट साइड हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, क्लासिफिकेशन. सो द नेक्स्ट साइड हेडिंग विल बी इन योर कॉपी, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के नीचे आप लिखेंगे कैपिटल A. क्लासिफिकेशन 3-4 मतलब टाइप्स के हैं. इसमें से पहला क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, मतलब किसके बेसिस पे कि हेलोजन एटम्स कितने हैं. अब अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में मैं आपको यहाँ पर 1 लिख रही हूँ. मोनो यानी एक हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन. ठीक है, ये पहला है मोनो हेलो अल्केन. इसका जो फॉर्मूला है, जैसे कोई से भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज CH3CH2CH2Cl है ना, ये आपका मोनो हेलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो हेलो? यानी एक हेलोजन एटम, यही तुमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. कितने हेलोजन एटम्स हैं उनके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं या क्लासीफाई कर रहे हैं. तो अगर एक हेलोजन है तो कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हो, उसे कहेंगे मोनो हेलो अल्केन. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द नेम क्लोरोप्रोपेन, है ना, क्लोरोप्रोपेन. ओके, अब हम जैसे इसमें अगर ले रहे हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, वो हम ले रहे हैं डाई हेलो अल्केन. डाई हेलो अल्केन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें कितने हेलोजन हैं? 2 हेलोजन हैं. सपोज मैंने लिया आपका CH2Cl डैश CH2Cl. अब आप ज़रा सा 1 मिनट दे रही हूँ, आप इसका नाम देखें, अपने आप सोचें कि इसका नाम क्या हो सकता है. हरी अप चिल्ड्रन. CH2Cl, CH2Cl यहाँ लिख देती हूँ. अगर आपको नहीं दिख रहा नीचे तो वी कैन राइट हेयर ऑल्सो CH2Cl एंड CH2Cl. अगर ये कंपाउंड मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसका नाम बताएं मुझे, तो आप इसका नाम क्या बता सकते हैं इस कंपाउंड का? देखिए, आपने कुछ बच्चों ने लिखा भी है, ये 1 है और ये 2 है ना. 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, तो 1,2 डैश डाई क्लोरो, और 2 के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? ईथेन. 1,2 डाई क्लोरो ईथेन इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस डाई हेलो अल्केन. डाई हेलो अल्केन का जो आयोपिक नेम है वो क्या है? 1,2 डाई क्लोरो ईथेन. ठीक है, अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है, आगे जाके बुक में दिया है, मैं अभी ही पढ़ा रही हूँ. मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है जो तुम्हें समझाऊंगी तुम्हें. अगर आपके पास जैसे ये अल्केन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये पड़ोसी कार्बन पे अगर 2 हेलो लगे हैं,
पड़ोसी कार्बन पे, नेबरिंग की फैमिली का नाम है विसिनल। केमिस्ट्री में नेबरिंग की फैमिली का नाम है विसिनल, ये फैमिली का नाम है। विसिनल डाइहैलाइड कहीं भी दिखे किसी बच्चे को, कहीं पर भी दिख जाए विसिनल डाइहैलाइड, तो समझ लेना दो पड़ोसी कार्बन पे हेलो एटम लगे हुए हैं, तो ये तो विसिनल डाइहैलाइड हो गया। अब कॉमन सिस्टम में, आयोपिक में तो फॉलो करोगे रूल जो होता है, कॉमन सिस्टम में जब आप विसिनल डाइहैलाइड का नाम पढ़ेंगे तो आपको अल्काइलीन, ये सब ट्रिक्स याद करना है, अल्काइलीन यानी 2 कार्बन है तो इथाइलीन, 3 होते तो प्रोपाइलीन, समझ गए। तो अब 1,2 डाइक्लोरोईथेन का अगर कोई हमसे कॉमन नेम पूछेगा तो हम कहेंगे क्या नाम है इसका कॉमन नेम, इथाइलीन, 2 के लिए डाई क्लोराइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड इज द common name of this compound, ethylene dichloride. This is the common name and this is the iopic name. ऊपर वाला आयोपिक नेम है और नीचे वाला कॉमन नेम है। तो ये हमारा 1,2 डाइक्लोरोईथेन इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस इज द कॉमन नेम। और फैमिली का नाम क्या है, अगर कोई कहे कि नहीं फैमिली का नाम भी बताओ, तो फैमिली का नाम है विसिनल डाइहैलाइड। दिस इज द नेम ऑफ द फैमिली, विसिनल डाइहैलाइड इज द नेम ऑफ द फैमिली। सो आई होप इज इट क्लियर। द सेकेंड क्लासिफिकेशन जिसका नाम था डाइहेलो अल्केन, द एग्जाम्पल आई हैव टेकन CH2Cl, CH2Cl. For neighboring carbon we use the term vicinal, and for in iopic then system simple, while for vicinal you can write one line in your copy. For vicinal dihalide in common system we write alkylene dihalide. फिर से बोल रही हूँ, for vicinal dihalide in common system, for vicinal dihalide in common system we write alkylene dihalide, we write alkylene dihalide। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी इन्होंने दी हुई है बट अपन ने अभी से पढ़ा दी है क्योंकि आपने जो चीज़ जहाँ पढ़ ला हो उसको उसी टाइम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा भी लगता है और दिमाग में बैठ भी जाती है। अब आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ ला हो वो पढ़ ला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आप क्लासिफिकेशन पढ़ ला हो, तो इसी में आपका एक क्लासिफिकेशन आएगा जिसके अंदर आपके 3 हेलो लगे होंगे। आपके पास कार्बन में कितने हेलो लगे होंगे, 3 हेलो लगे होंगे। जैसे कि सपोज वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग, सपोज आपके पास CH2, जैसे Br ले लें अपन अभी, CH2Br, CHBr, 3 तक पढ़ लेंगे अपन, जैसे CH2Br है ना। तो ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में यहाँ पर 3 हेलोजन एटम एक साथ लगे हुए हैं। आयोपिक नेम में कोई टेंशन नहीं है, वही जो फॉलो करते हैं रूल 1, 2, 3 है ना। तो क्या कहोगे 1, 2, 3 डैश ट्राई ब्रोमो प्रोपेन है ना। ये तो आपका हाँ मतलब ये आपका आयोपिक नेम हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर वही वाली बात आ गई, कौन सी, नेबरिंग। भले वो 2 नहीं है लेकिन 3 है, लेकिन तीनों भी पड़ोसी हैं, तीनों पड़ोसी हैं। तो अल्काइलीन 3 कार्बन का प्रोपाइलीन ट्राइब्रोमाइड, तो इसका कॉमन नेम भी अपन लिख लेंगे, दिस इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड कॉमन नेम में प्रोपाइलीन ट्राइब्रोमाइड। Propylene tribromide is the common name of this compound. So I hope it is clear and you enjoyed from the beginning। आप enjoy कर रहे हो क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप NCERT भी मेरे सामने थी, उसके अंदर उसने लिखा है डाइहेलो अल्केन, ट्राइहेलो अल्केन, मोनोहेलो अल्केन, फिनिश। उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लिखा है और छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है ऐसे। हमें हर चीज़ जो लिखी गई है किताब में उसके नाम पता होना चाहिए, आयोपिक भी पता होना चाहिए, कॉमन में पता होना चाहिए। दिस इज द डेप्थ ऑफ DSE क्लासेस।
अब आ जाइए आगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिकॉज नाउ डेज आई एम ऑब्जर्विंग कि आप बिल्कुल डल बने बैठे हो, यू आर नॉट लाइक सिटिंग ओनली एंड राइटिंग. ऑल ऑफ यू हरी अप, लाइक द वीडियो फास्ट. It is organic chemistry we have started. I want all of you have to like the video. Understood or not? And share it with many more and subscribe the channel also. Hurry up, all of you like the video fast. Now, after this, you will be taking some examples of classification on the number of halogen atom ही पढ़ना है अभी, but we will be taking the classification for arene also. So I am giving you few examples for arene also. Suppose ये arene है यानी benzene ring है. This is my benzene ring. है ना, इस पर मेरे पास हो सकता है एक Cl हो सकता है मैं बेंजीन रिंग ले रही हूँ और मेरे पास यहाँ पर 2 Cl हों, और हो सकता है मैं बेंजीन रिंग ले रही हूँ और मेरे पास यहाँ पर 3 Cl हों. एक Cl यहाँ है सपोज, वो कहीं भी लगा सकते हैं अपन, वो तो अभी सिर्फ जनरल बता रही हूँ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के हिसाब से. तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, सबको पता है. व्हाट इज द नेम? क्लोरोबेंजीन. दिस इज नो एनी इशू इन दैट. All of you know it. It is chlorobenzene. Let us take this one. इसका अगर नाम आयोपिक पढ़ोगे तो 1 और 2 है ये, तो आयोपिक नेम आएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इसका कॉमन नेम है, सॉरी आयोपिक नेम है. लेकिन अगर कोई बंदा हमसे पूछे कि नहीं आप तो हमें वो वाला नेम बताओ, कॉमन के साथ साथ आप हमें बताओ आयोपिक के साथ कॉमन भी बताओ, तो कॉमन में मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बात फिर से मैं बता रही हूँ. अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन था तो मैं बता देती हूँ. अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, भले वो एक्स है कोई सा भी, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है जिसका सिंबल ओ लगाते हैं, ये भी ऑर्थो होती है. ये वाली पोजीशन मेटा होती है जिसका सिंबल एम लगाते हैं, ये भी एम है आपका. और ये वाली पोजीशन आपकी पैरा होती है जिसका सिंबल आपका लगता है पी. तो ऑर्थो की 2 पोजीशन होती है, मेटा की 2 पोजीशन होती है और पैरा की भी एक ही पोजीशन होती है. तो अगर हम इसका नाम कॉमन में लेंगे बेटा, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो हम ओ लगाएंगे फॉर ऑर्थो. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है ये बातें. तो ऑर्थो लगाएंगे और फिर डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. और अगर ये यहाँ होता तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन होता, अगर ये यहाँ होता तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता. अब अगर 3 ले रहे हैं तो 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, इसका कोई भी सच नाम नहीं है कॉमन में, इसको ऐसे ही रहने देंगे अपन. सो प्लीज फिनिश राइटिंग वेरी फास्ट. वी हैव डन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. ओके, सो ये ए कैटेगरी थी, ये क्लासिफिकेशन की आपकी ए कैटेगरी थी. अब आपकी ए कैटेगरी क्लासिफिकेशन की फिनिश हो गई है. आई होप दैट यू हैव फिनिश राइटिंग वेरी फास्ट. यू प्लीज राइट ऑर्थो मेटा पैरा एंड देन क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन. सो आफ्टर दिस वी विल बी टेकिंग द सेकेंड क्लासिफिकेशन. सेकेंड क्लासिफिकेशन पता है काय पर डिपेंड है? ध्यान से सुनो. सेकेंड क्लासिफिकेशन उस पर डिपेंड है कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से लगा है उसका हाइब्रिड स्टेट क्या है. तो पहले अपन sp3 वाला पढ़ेंगे. तो कैपिटल बी में आप लिखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे लिखेंगे कंपाउंड्स containing sp3CX बॉन्ड. ठीक है, वो कंपाउंड जिनमें sp3CX बॉन्ड होगा, वो कंपाउंड जिनमें sp3CX बॉन्ड होएगा. इसके अंदर अपन आप इसमें 3 पढ़ोगे, 1, 2, 3 पढ़ेंगे अपन. तो पहला हम इसमें देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड. 1 लेंगे हम इसका अल्काइल हैलाइड, बी में 3 है तो 1 हम ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड. द फर्स्ट वन इज एल्काइल हैलाइड. ओके, इसका पहला वाला हमारा अल्काइल हैलाइड है. और ध्यान में रहे आपको बहुत अच्छी तरह कि अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो हेलो एटम से, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज. तो यहां पर अपन लिखेंगे हेयर द कार्बन एटम
here the carbon atom attached with halogen is sp3 hybridized. Here the carbon atom attached with halogen वो क्या है, वो है sp3 hybridized. So the carbon atom which is attached with halogen is sp3 hybridized. You can take any example. So suppose you are taking C2H5Cl, यहाँ पर भी कार्बन sp3 है. सपोज आपने ये ले लिया CH3CH CH3Cl. सपोज आपने ये ले लिया CH3C CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी Cl. अगर आपने ऐसा ले लिया है तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हेलो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज. ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, सारे, बट ऑल ऑफ देम आर व्हाट, आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. अगर आप रिकॉल करेंगे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस तो आपको याद होगा कि ये सारे के सारे आपने बहुत डिटेल में पढ़ाए गए हैं आपको. और मैं चाहूँगी कि आप फटाफट कमेंट में लिखते जाएंगे. इनका आयोपिक नेम सबको पता है, वो नहीं लिखेंगे. 1 क्लोरोईथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो आयोपिक तो मैं लिख रही हूँ, बट कमेंट में जब तक आप इनके कॉमन नेम भी लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. हरिया, जब तक मैं आयोपिक लिख रही हूँ आप इनके कॉमन नेम लिखेंगे ताकि मुझे पता रहे कि मेरा बच्चा मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियोस से बहुत उसे फ़ायदा हुआ है और उसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करी है. इसका नाम है आयोपिक में 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम है आयोपिक में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. 2 पे क्लोरो भी है और 2 पे मिथाइल भी है. 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन and 1 chloroethane. So these are 3 examples of the compound where the halo atom is attached with which carbon, which is sp3 hybridized. Okay, now कमेंट में जल्दी से देख रही हूँ मैं, फटाफट कमेंट में तुम लोगों ने, बहुत से बच्चों ने सही लिखा है, वेरी गुड. सो द नेम ऑफ द फर्स्ट वन इज ethyl chloride. This is the common name, these are the iopic name and the name ethyl chloride. जो बच्चे हैं जल्दी से बाकियों का लिखो जल्दी. ethyl chloride कॉमन में. इसका वेरी गुड आंसर मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये स्पेशल केस है. आइसो 3 में से बीच वाले कार्बन में से अगर हट रहा है तो आइसो आता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. और ये वाला जो है जिसके पास 3 कार्बन है ये है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड. अब आपको समझ में आ रहा है कि अमीना मैडम ने क्यों आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, क्योंकि हर जगह वो ऑर्गेनिक शुरू हुई नहीं है कि आपका इंट्रोडक्शन लग रहा है. जल्दी से लिख लें. और जिन बच्चों ने लिखा है वेरी गुड, आई वांट टू क्लैप फॉर देम विच आर रिवाइजिंग माय इंट्रोडक्शन वीडियोस फास्ट. So this is the first classification for the B part, which is compound containing sp3. वो कंपाउंड जिनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो 1 डिग्री है. प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी भी होते हैं. ये प्राइमरी है पहला वाला, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है. सो फिनिश फास्ट राइटिंग एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. इसी का मतलब नेक्स्ट वन ये 1 था, अभी अपना हमारा दूसरा आ रहा है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, लेकिन अभी अपन फिर से उसको लेंगे क्योंकि सिस्टमेटिक वे में अपना आ रहा है. अब तो सेकंड जो हमारा आ रहा है वो अपन यही लिख सकते हैं, अभी जगह है अपने पास. तो सेकंड आपका कौन सा वाला, sp3 वाला अलाइलिक हैलाइड. सेकंड हमारा है अलाइलिक हैलाइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सुन लो, पुट योर पेन फॉर अ मिनट, लिसन टू मी केयरफुली, देन वी विल कंटिन्यू. अलाइलिक हमने पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, एक क्वेश्चन दिया था कि वाई अलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड आर वेरी, अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन आर स्टेबल. उसका आंसर भी अपन लिखा था ड्यू टू रेजोनेंस. पिछली जस्ट क्लास जो लास्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन की. अब अलाइल के हमने तुम्हें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी थी कि बेटा अलाइल जब भी पढ़ना हो तो दिमाग में अपने सबसे छोटा कंपाउंड क्या था, वो कमेंट में चाहिए जल्दी, क्या था वो, हरी अब 1 2 3. कौन सा सिंपलेस्ट कंपाउंड है जिसमें अलाइल यूज होता है,
यस, प्रोपीन। प्रोपीन का जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसमें से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो वो अलाइल होएगा। लेकिन इससे अच्छा और डेफिनेशन है, क्योंकि खाली प्रोपीन अलाइल नहीं होता, अलाइल तो एक जनरल कैटेगरी है। इसका डेफिनेशन सुनो मेरी बात से, बहुत ध्यान सुनना। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है कोई, उसका पड़ोसी कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर उसमें से हाइड्रोजन हट रहे तो उस चीज़ को कहा जाता है अलाइल। समझ गए अलाइल? और मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दी थी अलाइल की, अभी मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, आप लिखो साइड हेडिंग डेफिनेशन। फास्ट राइट डेफिनेशन लिखिए इसके अंदर। हेयर द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, या इज अटैच कर दो, हेयर द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon here the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom, halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is, ये सबसे असल लाइन है, पूरी अंडरलाइन करना, which is adjacent to carbon carbon double bond, which is adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, हेयर द हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद व्हाट, विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम एग्जाम्पल देंगे, अब बढ़िया समझ में आएगी तुम्हें, क्योंकि पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपन वो एग्जाम्पल। जैसे आपके पास प्रोपीन है, ये आपके पास प्रोपीन है, ठीक है, दिस इज योर प्रोपीन, ऑल ऑफ यू नो इट इज योर प्रोपीन। ओके माय डियर, इसमें से आपने H हटाया, लेकिन कौन से कार्बन का H हटाया? इस वाले का, जो कि क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब ये हो गया हमारा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, डैश CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस कार्बन इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये अलाइल है। अब यहाँ अगर मैंने लगा दिया जैसे सपोज Cl, ये Cl, तो द नेम बिकम्स अलाइल क्लोराइड। लेकिन उसका फिर आयोपिक नेम बताएंगे, ये तो अलाइल क्लोराइड बता दिया है मैंने, बट फिर इसका आयोपिक नेम भी बताया जाएगा। तो अभी आप इतना लिखो, पहले प्रोपीन बना लो, प्रोपीन का ये CH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से H हटाया, इट बिकम CH2, ये वैसे ही रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन हटा के हमने Cl लगा दिया सपोज, तो हमारा कंपाउंड हो गया अलाइल क्लोराइड। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? अलाइल क्लोराइड। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज अलाइल क्लोराइड, वेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो बच्चा मेरी पूरी वीडियोस देख रहा है वो क्लास के ही उसमें रट जाएगी ऑर्गेनिक, उसे क्लास में उसको ऑर्गेनिक में मजा आने लगेगा। 3 लेक्चर के बाद वो बस वेट कर रहा होगा कब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास आएगी। लेकिन वो सिर्फ वो बच्चे हैं, आई एम टेलिंग यू, मेनी ऑफ यू आर एब्सेंट इन द प्रीमियर, कम रेगुलर टू द क्लासेस, कम रेगुलर। हो गया ये अलाइल क्लोराइड, सबने लिख लिया, सबने। अब आयोपिक नेम जल्दी से मैं देखती हूँ कौन बच्चा इसका आयोपिक नेम देता है, क्योंकि बुक में इस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया है, तो वो थोड़ा सा आपको बुक में कंफ्यूज रहोगे आप, क्योंकि वहाँ पर कोई ना आयोपिक नेम दे रहा है ना आपको मतलब कोई रूल बता रहा है। लेकिन अपन को इसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ पढ़ रहा हो वहीं पर उसका आयोपिक नेम होना ज़रूरी है। अब मेरी एक बस चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं नंबरिंग राइट हैंड साइड से करूँ कि लेफ्ट हैंड से, ज़रा कमेंट में लिख के बता दो जल्दी से। फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट द नंबरिंग, फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड? Hurry up, let me check in the comment. I am waiting 1 minute only. I will count till 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Hurry up, right, from right or left. Mixed opinion. I will tell you, listen to me carefully. जब भी किसी कंपाउंड में, ये हिंदी चलना बहुत ज़रूरी होती है, उसी समझ में आती चीज़, जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और हेलो दोनों हों, डबल बॉन्ड को प्रीफर करना नंबरिंग करने में। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है हेलो से, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है हेलो से, तो डबल बॉन्ड और अगर हेलो दोनों हैं तो किसको प्रीफर करोगे? डबल बॉन्ड से नंबरिंग की जाएगी। ये भी पहले मैं लिखवा दूँ नाम, फिर मैं रूल भी लिखवा दूँगी। तो यहाँ पर आपकी नंबरिंग डबल बॉन्ड से की जाएगी। ये 1 हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन, इसका नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 क्लोरोप्रोपीन। इज इट क्लियर और नॉट?
आई होप इट इज़ 100% क्लियर। अब तुम चाहो तो रूल भी लिख लो इफ यू वांट, प्लीज राइट डाउन द रूल। व्हेन हेलो एटम एंड डबल बॉन्ड आर देयर, व्हेन हेलो एटम एंड डबल बॉन्ड आर देयर, देन start the numbering. When hello atom and double bond both are there, then start the numbering from double bond. Then start the numbering from double bond. नंबरिंग स्टार्ट होएगी डबल बॉन्ड से, नंबरिंग स्टार्ट होएगी डबल बॉन्ड से। और अगर जल्दी में आपको लग रहा है कि मिट जाता है बोर्ड, तो आपको इसको रिविजिट करके वीडियो को फिर से लिख लेंगे और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड और हेलो एटम दोनों हैं तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होएगी? नंबरिंग स्टार्ट होएगी डबल बॉन्ड से। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने बी कैटेगरी में बताया था 1, 2 और 3 है, अभी हमने 1 और 2 पढ़ा है। अब हम आ रहे हैं 3 पे, अब हम आ रहे हैं 3 पे। 3 हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। अभी आपको ये सब नाम सुन के लग रहा होगा कि अमीना मैडम ने क्यों इंट्रोडक्शन की वीडियोस ली थी, क्योंकि हर जगह ये सब चीज़ें दिख रही हैं। जो जो इंट्रोडक्शन है वो साल भर दिखता रहेगा और हमेशा थैंक यू बोलोगे और हमेशा खुश होगे ना। बेंजाइलिक हैलाइड का फिर वही वाला प्रॉब्लम कि बेंजाइल का नाम सुनते ही दिमाग में बेंजीन आता है, लेकिन वो बेंजीन नहीं होता। हमने तुम्हें बताया है कि बेंजाइल का ओरिजिन टोल्वीन, बेंजाइल का ओरिजिन, अभी तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लिख ले कॉपी में, बेंजाइल का ओरिजिन टोल्वीन, बेंजाइल का ओरिजिन टोल्वीन। अब अगर टोल्वीन भी नहीं पता तो वो भी मालूम कर लो। बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाना, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाना, उसे टोल्वीन कहेंगे। उस टोल्वीन का जो CH3 है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें से अगर एक H हटा के हेलो लगाओगे तो उसे कहोगे बेंजाइल हैलाइड। यानी मैं तुम्हें पूरा ओरिजिन बताऊंगी पहले, फिर अपन डेफिनेशन भी लिख लेंगे। अभी तुम लिखो नहीं, अभी समझ लो, देन आई विल टेल यू, आई विल गिव यू द डेफिनेशन। सपोज दिस इज योर टोल्वीन, ओके, ऑल ऑफ यू नो दिस इज योर टोल्वीन, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू इन सच अ वे कि रट्टिफिकेशन नहीं हो, समझ के करो ऑर्गेनिक। ये H हटाया, कौन से कार्बन से हटा रहे हैं? sp3, क्योंकि आप ये जो क्लासिफिकेशन B है वो sp3 कार्बन वाले हेलो एटम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से कहीं से नहीं हटा रहे हैं, हम sp3 से हटा रहे हैं। तो हमारा जो sp3 वाला कार्बन है वो एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसमें से डैश हो गया, और यहाँ पर मैंने सपोज +Cl लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा नाम हो गया इसका बेंजाइल क्लोराइड, मेरा नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। समझ आई? कितना बढ़िया चीज़ें हैं ये, जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर हेलो एटम जिस कार्बन से लगा है, ये हेलो एटम जिस भी कार्बन से लगा है, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक्चुअली ऑर्गेनिक टफ नहीं होती है, लोग समझते हैं टफ। ऑर्गेनिक में ये होता है कि आपको बेसिक उसका बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जो बच्चे, जब भी मैंने इंट्रोडक्शन की 5 क्लासेस ली हैं, अगर बेसिक जिन बच्चों को आता है, मैं पक्का बोल रही हूँ बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा कर लेते हो। तो ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड जिसका ओरिजिन टोल्वीन है। अब इसमें अभी तक अपन ने खाली बेंजाइल क्लोराइड पढ़ा है, अब हम आपको बड़े अच्छी चीज़ें भी इसमें देने वाले हैं। अभी जस्ट अभी देखिए आप, ये एक बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। अगर कोई आए और कहे कि भाई हम जो हैं बेंजाइल तो ठीक है आपने लिखा है, हम तो 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं, हम इस मिथाइल टोल्वीन में से हम 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं। अगर 2 हाइड्रोजन हटा देगा वो बंदा तो 2 H कम होगा, तो एक Cl यहाँ लगेगा और एक Cl यहाँ लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल। बेंजल। अगर एक हाइड्रोजन हटाया है टोल्वीन में से तो बेंजाइल, अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिए टोल्वीन में से तो बेंजल। बेंजल डाइक्लोराइड, ये सब कॉमन नेम है, ये सब आयोपिक नेम नहीं है, लेकिन आयोपिक नेम भी बहुत आसान है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, वो छोड़ो अभी तो पहले कॉमन नेम समझो। और तीसरा इसका भाई एक और है भाई, इसका तीसरा भाई जब आता है जब इसमें से सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं और इसमें तीनों हेलो लग गए या कुछ भी लग गया, इसे कहते हैं बेंजो। बेंजो ट्राइक्लोराइड। देखा कितनी बढ़िया चीज़ें पता चली, बिल्कुल नई और अच्छी चीज़ें पता चली। तो इन सब का जो अब्बा है वो है टोल्वीन। ओरिजिन क्या है इन सब का? इनका फादर कौन है? टोल्वीन। और टोल्वीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बेंजाइल,
टॉल्वीन में से 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो बेंजल, टॉल्वीन में से 3 हाइड्रोजन हटाओगे तो बेंजो। टाइम दे रहे हैं 1 से 2 मिनट, कंप्लीट करो जो लिखा हुआ है, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगी। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, देन वी विल बी राइटिंग द डेफिनेशन टुगेदर ऑल ऑफ अस। ओके, हरी अप। So please remember this. Now write the definition. After finishing this, you please write down the definition. Here the halogen atom, here the halogen atom is attached here the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom. Here the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached with the aromatic ring या with benzene ring भी कह सकते हो, which is attached with benzene ring. So again here the halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon atom which is attached with benzene ring. So I hope it is very clear to you and it is very much important. ठीक है, अब मैं आपको एग्जामिन करने के लिए एक चीज़ दे रही हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 दे रही हूँ और आप लोग मुझे जल्दी से लिख के बताएंगे कि आप लोगों को इसके नाम पता है कि नहीं पता। मतलब कौन सी कैटेगरी है ये पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ ये कौन सी कैटेगरी के कंपाउंड है, मतलब टाइप यानी अल्काइल के अलाइल के बेंजाइल के कुछ सोन। हरी अप, पहला वाले का जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे, फिर दूसरे वाले का लिख के बताएंगे। जो दोनों सही बताएगा वो बहुत बढ़िया बच्चा है, उसको सब कुछ समझ में आ गया है। जल्दी से, आई एम वेटिंग, 1 2 3, आई एम वेटिंग, हरी अप। कुछ बच्चों ने बहुत सही लिखा है इसका नाम, कुछ बच्चों ने बहुत सही लिखा है इसका नाम। ये है C6H5-, इसको पढ़ा जाता है फिनाइल, वेरी करेक्ट, इसे पढ़ा जाता है फिनाइल। और इसका भाई जो यहाँ रहता है इसके साथ, बड़ा भाई CH2-, इसे पढ़ा जाता है बेंजाइल। रट लो दोनों को साथ साथ, इसको लिखते हैं C6H5-CH2, ये C6H5-CH2 है और ये है C6H5, रट लो, C6H5-CH2, C6H5-CH2 इज बेंजाइल while C6H5 अकेला इज फिनाइल। बेंजीन में से एक H हटेगा तो फिनाइल, टॉल्वीन में से एक H हटेगा तो बेंजाइल। इस तरह की केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, फ़ायदा उठा लो। लाइक करो वीडियो, फिर से लाइक कर दो जिन्होंने नहीं करा है अभी तक। नाउ अब ये वाला क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका बताया गया क्या, या हम इसमें बैठे हुए हैं ऐसे ही? क्या इसका बताया गया? हम बता रहे हैं, अगर किसी को नहीं आ रहा। यहाँ पर हेलो एटम उस कार्बन से जुड़ा है जो क्या है, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, विच इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो दिस इज ऑल्सो एलाइल। अब समझ आई? मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ को दिमाग में बिठाना है, खाली प्रोपीन को नहीं बिठाना। बस एक प्रोपीन किसी ने याद कर ली तो बड़ा खुश हो रहा है कि बस प्रोपीन मैंने पढ़ ली, तो अब प्रोपीन ही अलाइल होता है। प्रोपीन तो सिंपलेस्ट केस है अलाइल का। एक्चुअल अलाइल कुछ भी हो सकता है जब कार्बन एटम जहाँ हेलो लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होए और उसके पास वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड होए। सो आई होप कि मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह दी है इन सारी एग्जाम्पल्स में। ये आपका बी क्लासिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। अब अपन आएंगे सी क्लासिफिकेशन पे। ये सब क्लासिफिकेशन की ही हेडिंग में अपन पढ़ रहे हैं। हेलो अल्केन और हेलो अरीन के इंट्रोडक्शन के बाद ये सब क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा जा रहा है। ऑर्गेनिक बहुत डेप्थ में होती है और जो तुम्हें खड़ा पढ़ा रहा है उसने अपनी लाइफ गुजारी है ऑर्गेनिक में, क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी ऑर्गेनिक में करा है MSc और PhD भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सो आई थिंक यू हैव रिमेंबर्ड दिस मच। अब इसके बाद हम आ रहे हैं काय पे, सी कैटेगरी पे। आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, अब आप आ रहे हैं किस पे, सी कैटेगरी पे आप आ रहे हैं। सी कैटेगरी में हम देख रहे हैं
अपने पास सी कैटेगरी अब आएगा। आई थिंक दैट आई विल लाइक रब द बोर्ड बिकॉज यू हैव डन द नीडफुल। जितना मैंने पढ़ाया है वो सब लिख लिया है, और अगर कोई बच्चा धीरे लिखता है तो पहले भी बता चुके हैं, यू कैन रीविजिट द वीडियो, यू विल बी एंजॉइंग अगेन द लेसन एंड यू कैन कंप्लीट योर नोट्स ऑल्सो। अब हमारा आ रहा है सी। सी हमारा क्या है? सी हमारा है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब सी आ रहा है, सी में आप लिखेंगे सी कंपाउंड्स, लिखते जाओ जल्दी से, कंपाउंड्स containing sp2CX bond. This is the last classification of haloalkane. Last classification of haloalkane arene, that is compounds containing sp2CX bond. इसके अंदर भी बेटा दो आएंगे, लेकिन पहले पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो हेलो एटम है जिस कार्बन से लगेगा वो पहले से मालूम होना चाहिए बच्चों को, क्या? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। ये पहले से मालूम होगा, जब भी अपन को पढ़ाई में मजा आएगा। ये डिवाइड होगा दो कैटेगरी में, तो इसमें से पहली कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ आपको। इसमें भी 1 लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे विनाइल, विनाइल हैलाइड, बिल्कुल नया है, अभी तक नहीं पढ़ा है। विनाइल हैलाइड अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी पढ़ा था बेंजाइल, अभी पढ़ा था एलाइल, अभी पढ़ा था अल्काइल, अभी पढ़ा था फिनाइल, लेकिन अभी नहीं पढ़ा था विनाइल। अब इसकी भी एक बहुत बढ़िया, मेरे पास पूरी केमिस्ट्री की ट्रिक्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऐसी ट्रिक्स हैं बेटा कि तुम्हें मज़ा आ जाए। मेरे पास टाइम अभी थोड़ा बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, वरना मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा एक कोर्स में बनाओ जिसके अंदर मैं स्पेशल नीट और IIT की ऑर्गेनिक पढ़ा दूँ। तुम लोगों को ना दिमाग फिर जाएगा, मज़ा आ जाएगा, सोचोगे ये क्या ऑर्गेनिक चल रही है। बट अभी मैं वादा नहीं कर रही, क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी अपन इसमें एंजॉय करेंगे, बाद में वो भी करेंगे। तो क्या है ये विनाइल? कहाँ सा ओरिजिन है विनाइल का? ईथीन। कितना आसान है, ईथीन। प्रोपीन तो पढ़ लिया भैया, प्रोपीन का ओरिजिन तो पढ़ लिया, अलाइल, इतना आसान। अब उससे भी छोटा, सबसे छोटा अल्कीन पढ़ा था क्लास 10 में, सबसे छोटा अल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। कुछ लोग कहते थे मीथीन, कुछ नहीं होता मीथीन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ईथीन, ईथीन ही ओरिजिन है विनाइल का। अगर ईथीन का, ईथीन में तो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अगर ईथीन का sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है आपका, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसके बदले हेलो लगा दिया, वो हो जाएगा विनाइल। मैं ओरिजिन बता रही हूँ, बाकी कहीं भी हो सकता है। अब जैसे ओरिजिन है तो पहले ओरिजिन लिखो, फिर बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। ये मैंने ईथीन लिखा, दिस इज माई ईथीन। ओके माई डियर, इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू नो इट इज ईथीन। यहाँ पर मैंने -H करा, किसी भी कार्बन जो तुम्हें अच्छा लग जाए। तुम्हें ये अच्छा लग गया, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कोई टेंशन नहीं। अब तुमने CH2 डबल बॉन्ड CH डैश डैश, कुछ भी लगा सकते हैं ना, भाई जरूरत थोड़ी कि हेलो। अल्कोहल पढ़ोगे तो वहाँ OH लगा देना, नाम तो वही रहेगा विनाइल, नाम में फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमारा विनाइल है। अभी हमने सिर्फ विनाइल समझा ना, फिर Cl लगा के भी नाम बता देंगे। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, एंड दिस इज द कॉमन नेम। लेकिन ये कॉमन नेम इतने इंपॉर्टेंट है कि आयोपिक तो कोई भी कर लेगा यार इसको। आयोपिक कौन है ऐसा जिसको नहीं आता भाई? आयोपिक 1 क्लोरोईथीन कौन नहीं बना सकता? हर बच्चा बता देगा कि ये 1 क्लोरोईथीन है, लेकिन कॉमन नेम सिर्फ वो बताएगा जो सुन रहा है मेरी बात। जरा लिख तो लो, फिर डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, फटाफट लिखेंगे जरा जल्दी से। सारा कुछ जो बोर्ड पे है वो लिख लेंगे फौरन, तेज तेज। हो गया? अब अगर लिख लिया है पूरा जो बोर्ड पे है, तो अब अपन डेफिनेशन भी लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 मार्क में डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो मैं बता चुकी हूँ मैं कि 1 वर्ड आंसर है, तो मैं बता चुकी हूँ कि असर्शन रीजन आएंगे, तो मैं बता चुकी हूँ कि मैं वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो बच्चे हर बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको हर अच्छी चीज़ मिल रही है, उनको सारे टेस्ट पेपर मिल रहे हैं।
पिछले मतलब अभी टाइम टेबल भी बन गया है कि ऑल्टरनेट डेज आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, आपके हर चीज़ आपको मिलेगी, जिससे आपको फाइनल में आपको लगेगा कि हर सब्जेक्ट आपके हाथ में आ गया है। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर विच फॉर विनाइल हैलाइड, हेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड, हेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड विद sp2 hybridized carbon atom. Here the halo atom is attached with sp2 hybridized carbon atom of double bond. एक मिनट चेक कर लूँ, वही लिखा है ना, हाँ, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है, या खाली डबल बॉन्ड भी कह सकते हो। तो हेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड विद sp2 hybridized carbon atom ऑफ डबल बॉन्ड या ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो आई होप दैट विनाइल ऑल्सो इज क्लियर 100%. इसका जो सेकंड आता है वो तो तुमने बहुत दिनों से पढ़ा हो, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 5 मिनट पहले, लेकिन अपन इस कैटेगरी में है तो लिखेंगे उसे अराइल हैलाइड. अराइल हैलाइड, अराइल यानी फिनाइल, अराइल का मतलब ही बेंजीन होता है, बेंजीन का एक एच हटा दोगे तो अराइल बन जाएगा, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, फिनाइल. तो ये बेंजीन है, अभी पढ़ाया अपन ने. ये आपका फिर से यहाँ लिख लो कॉपी में सिस्टमेटिक वे में, ये आपका बेंजीन है जिसका सिंबल है C6H6. बेंजीन इज व्हाट, बेंजीन इज C6H6. बेंजीन में से आपने एक H हटाया तो आपका आ गया ये आपका C6H5 हो गया, जिसको आप इसे बेंजीन कहोगे आप, और इसे आप क्या कहोगे, फिनाइल. दैट वाज बेंजीन एंड दिस इज योर फिनाइल. वो बेंजीन था, यह आपका फिनाइल है. और इस फिनाइल में अगर आपने Cl लगा दो, Br लगा, जो तुम्हें अच्छा लगे लगा दो. अगर यहाँ आपने Br लगा दिया तो इट बिकम्स फिनाइल ब्रोमाइड. ओके, सो बेंजीन में से H हटा के फिनाइल, और फिनाइल में अगर Br लगा दिया तो इट बिकम्स फिनाइल ब्रोमाइड. इज इट क्लियर टू? सो दिस इज द अराइल हैलाइड. इसके डेफिनेशन कोई भी अपन लिख सकते हैं अपने आप भी. हेयर द हेलो एटम इज अटैच, यहाँ भी देखो, यहाँ भी हेलो एटम अटैच था sp2 हाइब्रिडाइज से, यहाँ भी हेलो एटम अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज से, बट यहाँ पर हेलो एटम अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ हेलो एटम अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग. तो लिख लो डेफिनेशन फॉर अराइल. हेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड, हेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड with sp2 hybridized carbon atom. Here the halo atom is attached with sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring, of the benzene ring. Here the halo atom is attached with sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring. ठीक है, ओके. तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है. मैं अभी नोमेनक्लेचर अगली क्लास में बहुत से करवाऊंगी, अभी मैं सिर्फ तुम्हें 2 या 3 नोमेनक्लेचर करवा रही हूँ, फिर क्लास को फिनिश कर रही हूँ अभी वाली. बट नोमेनक्लेचर अगली क्लास में बहुत से होंगे, तो आप हेडिंग डालोगे, आप कहोगे मैडम नोमेनक्लेचर तो हमने कर लिया है. 11 में भी अभी भी इंट्रोडक्शन में नोमेनक्लेचर हर जगह चलेगा, इसीलिए नोमेनक्लेचर को करवाया गया था. मैं आई एम गिविंग यू ओनली 3 एग्जाम्पल्स बस अभी. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नोमेनक्लेचर आई वॉन्ट टू गिव यू, दैट इज 1 मिनट. हाँ, इसको मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसको लिखो और फिर तुम दोनों नाम सोचना. अगर तुम्हारे पास 2 नाम है, कभी कभी कॉमन नेम नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का कॉमन नेम भी हो, लेकिन कभी कभी कॉमन नेम भी होता है चीज़ों का. तो अभी मैंने ये लिखा है, आप इसका आयोपिक नेम और कॉमन नेम दोनों अपनी कॉपी में लिखेंगे. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. आप कॉपी में दोनों लिख के देखें, आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे आ रहा है. मतलब मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो सारी मैंने देखी हुई और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकल रहा हूँ, निकल पड़ गया, निकल पड़ा. यस, दिस इज 1. नोमेनक्लेचर वहीं से होगा जहाँ हेलो एटम है. दिस इज 2, दिस इज 3. नोमेनक्लेचर शुड बी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो पहले 1 क्लोरो कहना है, फिर 2,2 क्या है दोनों पे, डाई मीथाइल. 2,2 पे डाई मीथाइल, और 3 कार्बन के लिए हमें लेना है प्रोपेन. अगेन आई विल एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर. व्हेनेवर यू हैव द नोमेनक्लेचर इन दिस वे, you have to select the longest continuation of carbon atom having what? A halo atom. So this is the longest continuation of carbon atom having the halo atom. 1,
पे है क्लोरो, 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 दफ़ा 2 डाईमिथाइल और प्रोपेन। एनीवन कभी कभी पढ़ा है क्या हमने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में, सेकंड या थर्ड में? इसका कॉमन जरा नाम तो लिख के बताओ कमेंट में। हु कैन गिव द करेक्ट नेम? आई एम वेटिंग। आई विल काउंट टिल 5 अगेन। 1 2 3 4 5 इज द कॉमन नेम इज देयर? यस, ये हमारा नियोपेंटेन था। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये आपका चेन है, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है, तो क्या पढ़ाया था अपन ने? नियो, फिर कार्बन गिनोगे 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल और फिर क्लोराइड। समझ आई कैसा एक से एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं? अभी भी अगर कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ा है उन्होंने इंट्रोडक्शन की वीडियोस, 2 दिन में पूरा फिनिश कर लो। वेडनेसडे की क्लास से पहले ख़त्म कर लो इंट्रोडक्शन की वीडियोस सुबह शाम देख के, ताकि ऑर्गेनिक में मज़ा आना शुरू हो जाए और बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो एक तो मैंने आपको ये दे दिया है। अब मैं आपको एक और दूंगी, मतलब एक और बस दे रही हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप भी थोड़े थोड़े थक जाओगे। तो सेकंड ओनली विल टेक 2 एग्जाम्पल्स। एक और ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 Cl। ये 2 एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 CH2 Cl। पहले आप इसका आयोपिक नेम बताइए। कार्बन 1, ये 2, ये 3, 2 पे सॉरी 1 पे क्या लगा है? क्लोरो, सो वी कैन से 1 क्लोरो। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल प्रोपेन, है ना? तो यहाँ तो मुझे लग रहा है किसी को भी दिक्कत नहीं आई। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगर इसका कॉमन नेम भी बच्चा खुद निकाल के बता रहा है तो 100% उसको समझ आ गए हैं सफिक्सेस। कैन यू ट्राई फॉर द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हरी अप। यस यस, फास्ट, वेरी गुड। क्या नाम है इसका? ये सेकेंड लास्ट में मिथाइल ग्रुप लगता है जब 1 तो आइसो होता है, और अगर सेकेंड लास्ट पे 2 लगे होते हैं तो क्या होता है? नियो होता है। तो ये हो गया आइसो, 4 के लिए ब्यूटाइल क्लोराइड। और तुम मेरे साथ अगर समझदार बच्चा है, मेरा जो बच्चा समझदार बैठा है यहाँ, वो एक क्लास में समझ गया होगा मेरी सिर्फ पहली क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 की क्या मैं लेवल दे रही हूँ और कितना ज़रूरी था वो जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोस दी थी तुम्हें। थैंक यू बोलो और लाइक करो और आराम करो। गुड बाय।